Hello students. So today we will be learning secretarial practice chapter number 1, that is corporate finance. In this chapter we will be learning 5 to 6 questions. For that 6 to 10 marks can be asked in the board exams. So what is corporate finance? Corporate finance means the finance related to the company. The company has to take financial decision like planning and management of the money. So the term finance is related to money and money management. So definition says, according to Henry Hogland, corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital by business corporation. So business organizations take a decision regarding how to acquire a finance from the market and how to use it in a business, that is acquisition and management of a capital. These two decisions are taken on the basis of corporate finance. So if you are taking a decision of corporate finance, you need to take a two decision. First, the financing decision and investment decision. The firm has a multiple choice of sources of financing. The firm can choose whether it wants to raise equity capital or debt capital. Firm can even opt for a bank loan or public deposit debenture to raise the funds. In the investment decision, the finance manager has to take decision regarding the use of funds in a systematic manner so that it will bring the maximum return for its owner. So financing decision means how to raise the money, from where to raise the money, and what to bring in terms of money like shares, debentures, bonds or deposits or bank loan. And investment decision means where to use this money and how to use this money. So in the corporate finance, these two important decisions are taken: financing decisions and investment decision. From where to raise the money, how to raise the money, and how to use this money in a business effectively. So accordingly, you can write this answer in your exams. Next question we will be learning in this chapter, that is importance of corporate finance. So let's start with the session. This question can be asked for 5 marks in your board exams. There are 10 points in this question, but you need to learn only 5. इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है इस लेक्चर में हम देखेंगे. कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कोई भी डिसीजंस लेने के लिए वी नीड मनी. हमें जब कोई भी चीज़ डिसीजंस लेना चाहिए तो उसके लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है, और पैसे से रिलेटेड हमें कोई भी प्रोजेक्ट में हाथ डालने के पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं, प्रॉफिटेबल है या नहीं. एवरी डिसीजन इन द बिजनेस नीडेड टू बी टेकन कीपिंग इन अ व्यू ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. बिजनेस में कोई भी डिसीजन जब हम लेते हैं तो उसका असर प्रॉफिट पे क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है. There may be a number of alternatives, but the management is required to select the best one which will enhance the profitability. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे बिजनेस के पास, लेकिन मैनेजमेंट उसी प्रोजेक्ट्स में हाथ डालेगी या फिर उसी प्रोजेक्ट्स को करेगी जिसमें उसको प्रॉफिट दिखेगा. Business organizations can give a green signal to the project only when it is financially viable. Thus, corporate finance plays a significant role in decision making. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कभी भी उसी प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल देगी जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉफिट ज़्यादा होगा. तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम सीखते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस अपने बिजनेस में फाइनेंस को लेके आती है, उसको इस्तेमाल करती है और उसको इस तरह से बेस्ट वे से इस्तेमाल करे कि बेटर से बेटर रिजल्ट वो लेके आए. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमने देखा, फर्स्ट पॉइंट वी हैव सीन, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, द फर्स्ट पॉइंट. ओके, so there are total 10 points we need to learn in this question. So next point is it helps in raising capital for a project. हमें प्रोजेक्ट के लिए लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं,
तो हमें कैपिटल रेज करना पड़ता है। अब कैपिटल रेज करने के लिए बहुत सारे सोर्सेस है, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, इवन बिजनेस कैन टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक्स। सो कोई भी प्रोजेक्ट में पैसे डालने का जो डिसीजन है उसके लिए हमें फाइनेंशियल डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस अच्छे से किया है तो वी कैन रेज इजीली अ कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। और कोई भी बिजनेस का प्रोजेक्ट प्रॉफिट लाने के लिए होता है, बट प्रॉफिट लाने के लिए सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। और पैसे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे सोर्सेस है उसके, शेयर्स इशू कर सकती है, डिबेंचर्स इशू कर सकती है, बॉन्ड्स इशू कर सकती है, इवन ऑर्गेनाइजेशंस कैन टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक्स। सो according to the project, the organization need to take a financial decision. It helps in research and development. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कोई फाइंडिंग, कोई रिजल्ट जब उसका आता है तो उससे ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत फ़ायदा होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च करके निकाली और वो रिसर्च अनोखा निकला, मीन्स यूनिक, like nobody has done such type of research, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। वो बहुत सारे एक्सपेंसेस करने के लिए हमें फाइनेंशियल डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप कॉर्पोरेट फाइनेंस अच्छे से करते हो तो you can undertake a research and development for the growth and expansion of the business, that the business has to undertake its old product and develop a new product। तो business organization को कभी भी old product से new product में conversion करना पड़ता है क्योंकि कस्टमर नया मांगता है, कोई भी चीज़ नया। For this the company has to conduct the survey, कंपनी को सर्वे करना होता है, मार्केट एनालाइज करके कंज्यूमर्स के डिमांड देखने होते हैं और अकॉर्डिंगली वो लोग उस प्रोजेक्ट में पार्ट लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ओनली दिस कैन बी अ पॉसिबल। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस फर्म। अगर ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली बैलेंस करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है तो उसको कॉर्पोरेट फाइनेंस अच्छे से करना होगा, उसको फाइनेंस अच्छे से करना होगा। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शंस के टाइम पे अगर रॉ मटेरियल की कमी हो और पैसे के कारण अगर रॉ मटेरियल ना आ पाए तो रॉ मटेरियल ना आने की वजह से प्रोडक्शन ना होगा, प्रोडक्शन नहीं होने के वजह से सेल्स नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा तो टर्नओवर नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे पूरा जो सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोडक्शन सिस्टम रुक जाएगा अगर आपने प्रॉपरली कॉर्पोरेट फाइनेंस नहीं किया है तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ स्मूथ फ्लो ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड so that the salaries of employees are paid on time, loans are cleared on time, raw material is purchased whenever is required, sales promotion is done to carried out smoothly and new product can be launched effectively। तो ऑर्गेनाइजेशंस के हर काम पैसे से चलते हैं। एम्प्लॉय को अगर आप सैलरी टाइम पे नहीं दोगे तो वो टाइम पे काम नहीं करेगा और अच्छे से काम नहीं, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। Employees needs to be satisfied by the organization, and how employees can be satisfied by providing monetary and non-monetary incentives. So organizations are needed to give salary on time, and how organization can give salary on time when the organization will conduct its corporate finance effectively. Next, it brings coordination between various activities। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेलिंग, मार्केटिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी। ऑल दिस डिपार्टमेंट्स आर अंडर वन रूफ, दैट इज़ अंडर वन कंपनी। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स में ह्यूमन रिसोर्सेज काम करते हैं, इन सारे डिपार्टमेंट्स में रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, बहुत सारे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो पैसे से आते हैं। तो वो पैसे मतलब फाइनेंशियल डिसीजंस अगर हम लोगों ने अच्छे से किया है, अच्छे से लिया है, अगर हमने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ अच्छे से की है तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में एक पक्का कोऑर्डिनेशन होगा। और कोऑर्डिनेशन जैसे कि आपको पता है, इट इज़ द सोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का ये एक सोल है जिसके बिना कोई भी मैनेजमेंट चल नहीं सकता।
तो कोऑर्डिनेशन लाने के लिए हमें फाइनेंशियल डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो क्या यहाँ पे क्या लिखा, कोऑर्डिनेशन फाइनेंस plays a significant role in controlling and coordination of all activities in the organization. Efficiency of every department depends upon the effective financial management. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का एफिशिएंसी डिपेंड करता है उसके प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कि उस पैसे को वो लोग किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस में दो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, पहले कहाँ से पैसे लाएं, फिर उसको इस्तेमाल कहाँ करें। नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स द एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप कॉर्पोरेट फाइनेंस अच्छे से करोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड होगा और डाइवर्सिफाई होगा फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट। डाइवर्सिफाई ऑर्गेनाइजेशंस को करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डाइवर्जन का मैंने एक कर्व भी दिया है और एक्सपांशन का भी कर्व। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड करने की सोच रही है तो उसका कॉर्पोरेट फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनेंशियल डिसीजंस अच्छे से लिए हैं तो ऑर्गेनाइजेशन टाइम पे पैसे अवेलेबल रखेगी, जिससे हम नए नए मशीन्स खरीद सकते हैं, नए एम्प्लॉयज़ को ला सकते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को ला सकते हैं, और जिससे हम बेटर से बेटर जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ है उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ जब हम कैप्चर करते हैं तो जो हमारे कंपटीशन में ऑर्गेनाइजेशन से उनको प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हमें एक्सपांशंस के लिए और डाइवर्सिफिकेशंस के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट फाइनेंस provides money to purchase the modern machines and technologies. Therefore, finance becomes mandatory for expansion and diversification of a company's resources. Next, managing the risk. The risk needs to be managed in the organizations. और रिस्क जो है उससे सडन लॉस भी हो सकता है, बहुत सारे ब्रेकेज भी हो सकते हैं। तो रिस्क को मैनेज के लिए करने के लिए यू शुड हैव विटामिन एम, दैट इज़ मनी। और मनी अवेलेबल रखने के लिए यू शुड डू प्रॉपर कॉर्पोरेट फाइनेंस। अगर आप फाइनेंशियल डिसीजंस प्रॉपर लेते हो तो यू कैन अवॉइड द फ्यूचर रिस्क। आप पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट यू कैन अवॉइड, यू कैन रिड्यूस द रिस्क। कंपनी हैज़ टू मैनेज द सेवरल रिस्क सच एज सडन फॉल इन सेल्स कम हो गया तो लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई तो लॉस ड्यू टू स्ट्राइक, फायर, थेफ्ट, बहुत सारे लॉसेज हो सकते हैं। ऐसे टाइम पे ऐसे रिस्क से बचने के लिए कंपनी को हमेशा अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आना चाहिए। कंपनी नीड्स टू फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क। तो इस रिस्क से बचने के लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। रिप्लेसिंग द ओल्ड असेट्स, हमें अपने ओल्ड असेट से न्यू में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम मॉडर्न मेथड यूज़ नहीं करेंगे तो मॉडर्न प्रोडक्ट्स नहीं बनेगा। जब मॉडर्न प्रोडक्ट्स नहीं बनेगा तो मॉडर्न बिकेगा भी नहीं। कस्टमर को सब कुछ नया चाहिए। तो नई मशीन्स लाने के लिए यू नीड मनी। नई मशीन्स लाने के लिए यू नीड मनी। सो हाउ यू विल ब्रिंग अ मनी? when you will have a good corporate finance. A finance is required to purchase new assets. So assets such as plant and machinery become old and outdated over the years. Machines, plants, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कुछ सालों के बाद पुरानी हो जाती है, and these machines and plants are needs to be replaced by the new machines. To purchase a new machines we need a money, and how money will be available with the organization? When the organization will do properly corporate finance. Next, payment of dividend and interest. Organizations are needed to give timely payment to the creditors, bankers, shareholders. अगर हम शेयर होल्डर को उनके टाइम पे डिविडेंड नहीं देंगे तो शेयर होल्डर का विश्वास ऑर्गेनाइजेशन से उठ जाएगा, उसकी मार्केट वैल्यू, उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। क्रेडिटर्स और बैंक्स जिससे हमने लोन लिया है उनको टाइम पे इंटरेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टाइम पे इंटरेस्ट नहीं देंगे तो वो दोबारा हमें लोन भी नहीं देंगे। तो ये फिर से मनी का प्रॉब्लम है, और इस मनी के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। अगर आपने प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लानिंग किया होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया होगा, तो आप टाइम पे सारे फंड्स अवेलेबल रखोगे ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरेस्ट और डिविडेंड देने के लिए। नेक्स्ट, लास्ट वन इज़ पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस।
So company has to pay the taxes to the government such as income tax, GST and various taxes to the government. गवर्नमेंट को टैक्सेस देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज गवर्नमेंट को अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो गवर्नमेंट आपको काम करने नहीं देगी. ओके, तो फाइनेंस इज़ नीडेड फॉर पेइंग दिस टैक्स एंड फीस ऑन टाइम. टैक्स देना इम्पॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम पे देना. तो टाइम पे देने के लिए यू शुड हैव अ मनी ऑन टाइम, और मनी अवेलेबल रखने के लिए यू शुड डू अ प्रॉपर कॉर्पोरेट फाइनेंस. अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे तो यू कैन बी अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल विथ योर मनी एंड ऑलवेज अवेलेबल विथ योर डिसीजंस एंड प्लानिंग. So that's it for this question. In the next question we will be learning about the fixed capital and working capital. Thank you so much.